ನಿಂತಿರೋರು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತರು ಮಹಂತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂತರು ಮಹಂತರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿರಾಜ ಪರಿವಾರದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಸಂತರು ಮಹಂತರು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಚೇರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. अभिनव कल्याण स्वामी म्यूजिक स्टॉप. शरणं व्रज रामानुज चरणौ
I now request everyone to please stand up for the national anthem. We will also inform, I request, we'll inform the Home Minister's office that we are ready to go live. जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Yes, through a unique tradition of chanting of Vedas and Purna Kumbha Swagatam, I request G.R. Swami to virtually invite and welcome Honorable the Home Minister through Purna Kumbha Swagatam. Vedagoshti. Vedagoshti to start. I request the team to connect the live feed. Yeah. Yes, sir. It's already connected. महान कीर्त्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानुषुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यजयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपात्मं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सग्रस्तम् तत्रापि दहनं गहनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रहृदीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः ओम्। I now request Srimati Jayanti Rangarajan to perform the invocation. श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्तो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம், உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் அருள் கொள்ளுவோம், உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் அருள் கொள்ளுவோம், உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சித்திரையாதிரை துலங்க, ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சித்திரையாதிரை துலங்க. கேசவ சோமயாஜி காந்திமதி தவ புதல்வனாம் உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். அளவந்தரடி வந்த 5 குரு ஆசி பெற்று 620 ஆண்டு வாழ்ந்த அண்ணல் எங்கள் எதிராசன், ஆண்டாளின் அண்ணன் கோயில் அண்ணன் என்ற புகழும் கொண்டு அரங்க நகர் அலங்கரித்த அருந்தவத்தோன் ராமானுஷன் உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். கோஷ்டியூர் நம்பியிடம் 3 முறை நடந்து 8 எழுத்தின் சாரம் கொண்டு ஆசையுடையோர்க்கு ஈந்தான் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் எங்கள் திருப்பாவை ஜியறிவர். ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் எங்கள் திருப்பாவை ஜியறிவர். ஸ்ரீரங்கம் நாராயணபுரம் பெரும்புதூரில் திருமேனியில் திகழும் உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் அருள் கொள்ளுவோம், உடையவர் உபதேசம் தன்னை கொள்ளுவோம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. आदाब, नमस्कारा, वणक्कम.
I have much pleasure in welcoming the distinguished guests for today's events. Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah Ji. Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji. We have two more guests who are on the way and will join us in between the program. Dr. Shri Ashwath Narayana Ji, Minister of Higher Education, IT and BT, Government of Karnataka. And Shri Tejasvi Surya Ji, Member of Parliament of Bangalore South. I have much pleasure in introducing and providing the background for today's event. Shri Ramanujacharya is a great Indian philosopher, social reformer, and one of the most important exponents of Sri Vaishnavism tradition within Hinduism. His philosophical foundations for devotionalism were influential to the Bhakti movement. Ramanujacharya is famous as the chief proponent of Vishishtadvaita sub-school of Vedanta. Shri Yadugiri Yatiraja Mutt of Melkote, Mandya district, is the only original mutt which exists from the time of Shri Ramanujacharya. It was started by Shri Ramanujacharya for services and control of temple of Shri Tirunarayana at Melkote. His Holiness Shri Yatiraja Jiyar Swami, the current and 41st pontiff of Shri Yadugiri Yatiraj Mutt, of late has been an icon and fondly addressed as Abhinava Ramanuja. In following and implementing the eternal principles of Shri Ramanujacharya in all the three verticals of Yadugiri Yatiraj Mutt, which are religious and spiritual, social service, and cultural and culture propagation, with no bias for religion, caste, and creed. His Holiness was a full-time Karyakarta of the Rashtriya Swayamseva for 15 years and oversaw many projects, including the release of Bharata Bharati compilation of books and construction of Rashtrottana Parishad building in Bangalore. Shri Ramanujacharya has a very special connection with Kashmir. Shri Ramanujacharya's most famous work is Sri Bhashya, which is the commentary on the Vedantas or Brahma Sutras. To compose this work, he desired to refer to Bodhayana Vritti, which had the reputation of being the most authoritative explanation of Brahma Sutras. This work was only available in the Royal Library of the State of Kashmir or Sharda Peeth at that time. Therefore, Sri Ramanuja, along with certain disciples, undertook this arduous and tedious journey to Kashmir and met the King of State. The king was very much pleased with their divine nature and immediately granted them access to the library. This enabled him to refer to the text, returned back to Srirangam, where he composed Sri Bhashya. He again returned to Kashmir after 2 years to dedicate Sri Bhashya to the world. Sri Ramanujacharya and Kashmir have this very special connection, which divinely led His Holiness Yatiraja Jiyar Swami to conceive a statue of peace of Sri Ramanujacharya to be installed in Srinagar Valley. I now request Honorable the Union Home Minister Shri Amit Shah Ji to unveil the statue of peace virtually and declare it open. Amit Shah Ji, you can declare. Can we have the screen? Which it's there already. It's there. I request. Screen, sir. You can go. Go. Zoom.
I request all the people to be seated on the seats and not get up for any reason. I request everyone to be seated on the seats and not get up. I now request Honorable the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, to release a book on Shri Bhashyam. I request Rangarajan ji to also come. Ranga Mama, you are requested to come on the stage. We will skip the next item, which is unveiling of the foundation stone for Kashmir unit, which was to be done by MP and MLA for delayed. The foundation stone this was the foundation stone for the Kashmir unit of Shri Edgiri Ithiraj Math. We will have it subsequently once they arrive. Next, I request Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha ji to address the audience. गुरुदेव श्री यति राजा जीयर स्वामी जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री मान अमित शाह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्टजन, देवियों, सज्जनों तथा वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैच्यू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस विशाल भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपंथ संभाव का संदेश दे रही है। मैं स्वामी जी के प्रति हृदय से और आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मंदिर तथा यात्री भवन के रेस्टोरेशन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। यह सिर्फ जगत गुरु की एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जगत गुरु की ही तरह समस्त अस्तित्व की व्यापकता का भी प्रतीक है। यह उस समन्वय का भी प्रतीक है जिसे आधार बनाकर विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना जगत गुरु ने की थी और मानवता को चित्त, अचित तथा ब्रह्म की प्रामाणिक झलक दिखाई थी। भक्ति मार्ग का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसका एक ही उद्देश्य मुझे समझ में आता है, और वह है
स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान करके सामाजिक जागरूकता का अनवरत बढ़ोतरी हो, इसका प्रयास करते रहना। मैं समाज के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के उत्प्रेरक के रूप में भी जगत गुरु के योगदान को देखता हूं। सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, न जाति कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतवः, अर्थात जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का प्रमुख कारण होता है। और मैं मानता हूं उनके इस आह्वान ने एक नए सामाजिक विचारों को जन्म दिया। जगत गुरु ने अपने दर्शन के द्वारा करुणा, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों के समायोजन को प्रकट किया और प्राचीन काल से उनकी वाणी संपूर्ण जल, थल, नभ में शांति स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करती रही है। इंसान अपने अच्छे कामों से ऊपर उठता है और मैं मानता हूं हर इंसान में संभावना है कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके स्वयं तथा समाज का उत्थान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म समभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों, सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया है। इसे मैं एक सुखद संयोग कहूंगा कि जगत गुरु की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबके सामने हुआ है। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूं अत्यंत प्रासंगिक है। और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया है। शांति ही जीवन का सार है, यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। और मैं मानता हूं शांति की स्थापना, समाज की प्रगतिशीलता के लिए किए जा रहे प्रयास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकते, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति का आंदोलन है। इसी ध्येय से जगत गुरु ने कश्मीर की भी यात्रा की थी। मेरे पूर्व भी बताया गया, जब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री भाष्य पर काम कर रहे थे तो उन्हें बोधायन वृत्ति पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी जो कश्मीर के राजा की लाइब्रेरी में थी। अपने शिष्यों के साथ जगत गुरु ने उस समय श्रीरंगम से कश्मीर की कठिन यात्रा की और राजा ने उनका स्वागत भी किया। वापस जाकर उन्होंने श्री भाष्य की रचना की और 2 साल बाद फिर कश्मीर वापस आकर उन्होंने राजा को श्री भाष्य पुस्तक का उपहार दिया। ये कश्मीर का संपूर्ण भारत के साथ सदियों का अटूट संबंध है, जो अध्यात्म हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग मिलते हैं तभी समाज का निर्माण होता है और इसलिए जगत गुरु हर एक व्यक्ति के सच्चरित्र की बात करते थे ताकि एक अच्छा समाज विकसित हो सके और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो। और इसीलिए अपने दर्शन में जगत गुरु ने नर सेवा को भी सर्वोच्च स्थान दिया। श्री भाष्य में उन्होंने लिखा है, शुद्ध अवस्थ एव ही प्रत्यगात्मा, जीवात्मा से अलग किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है और शुद्ध अवस्था वाला जीवात्मा ही परमेश्वर के अनेक नामों से उल्लेख्य है। जगत गुरु ने सदियों पहले जिस प्रकार समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और जड़ता के विरोध का बीड़ा उठाया था,
एवं समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के पक्षपात रहित व्यवस्था की हिमायत की थी, उनके दर्शन की वही आत्मशक्ति लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करती रहेगी। इतनी सदियों के बाद भी आज कश्मीर घाटी में जगत गुरु की प्रतिमा की स्थापना के साथ नई पीढ़ी को उस संबंध, उस दर्शन के बारे में भी पता चलेगा जो अटूट है तथा जो ये संदेश देता है कि मानवीय गुण के साथ ही सच्चा विकास हमारा संस्कार रहा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी तथा ज्ञान और भाव का समन्वय ही प्रगतिशील समाज की सही पहचान होती है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक आदिवासी तथा अनेक वंचित लोगों के साथ अनेक प्रकार का भेदभाव हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक समतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है और यही तो रामानुजाचार्य जी चाहते थे। मैं समझता हूं सुधारों का ये एक ऐसा पहलू है जो लाखों लोगों की जिंदगी संवार रहा है, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहा है। हमारे ऋषियों, मनीषियों ने, सूफी फकीरों ने जन जन को जीवन के हर एक पहलू से परिचित कराया है। सभी पंथों का एक ही लक्ष्य था, अपनी जड़ों से जुड़कर प्रगतिशीलता के मार्ग पर चलना। मुझे लगता है कि समाज में रहते हुए उसकी एकजुटता बनाए रखना और लगातार सुधार करने का जो दर्शन है वही भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव में हजारों साल पुराने वह दर्शन आज राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है और लोगों के विचार एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा है। जगत गुरु की प्रतिमा को मैं जम्मू कश्मीर के प्राचीन दर्शन, जीवन मूल्यों का पुनर्जागरण का प्रतीक भी मानता हूं। मेरा विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस घाटी के वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा शांति, आदर्श और सद्भाव तथा उन मूल्यों को जीने की प्रेरणा देगा। आजादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के दर्शन को स्टूडेंट्स तथा युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहा है। मैं पुनः भारत के सम्माननीय गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें भरोसा देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में एक समृद्ध, प्रगतिशील तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम सब अनवरत प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। I now request Honorable the Home Minister Shri Amit Shah ji to address the audience. आज इस महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम के अवसर पर परम पूज्य जीआर स्वामी जी के चरणों में मैं सिर्फ प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित स्वामी जी के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सुशासन के नए उदाहरण गढ़े हैं, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी आज के कार्यक्रम में फिजिकली और वर्चुअली उपस्थित रामानुजाचार्य के सहस्त्रों अनुयायीगण, आज मुझे बहुत आनंद है कि श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीआर स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है। मित्रों, भारत हमेशा से हर युग में जब जब भी समाज को जरूरत पड़ी, जब जब भी समाज के अंदर सुधारों की जरूरत पड़ी, कोई न कोई महान संत ने, कोई युग पुरुष ने आकर भारत को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, समाज को सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और हमारे आंतरिक प्रकाश की जब जब जरूरत पड़ी तो संत परंपरा से एक सूर्य हर समय पर, हर युग में उदय हुआ, जिसने फिर से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को युगों युगों तक आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य का जन्म भी
और उद्भव भी ऐसे समय पर हुआ जब हमें इस देश को एक इसी प्रकार के महापुरुष की जरूरत थी। आज मैं इस अवसर पर सबसे पहले भगवत रामानुजाचार्य जी के जीवन को, उनके कर्तृत्व को और उनके व्यक्तित्व को बार बार नमन कर प्रणाम करना चाहता हूं। आदि शंकर के सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को जोड़ने के बाद समाज जब फिर से भटकाव में आने लगा था, सामाजिक एकता समाज की खंडित होने लगी थी, अनेक प्रकार के कुरिवाजों से समाज ग्रसित होने लगा था, तब पुनः विधाता ने भारत को भगवत रामानुजाचार्य के रूप में एक महापुरुष के रूप में भेजकर वैष्णव मानव धर्म को उसके मूल के साथ जोड़ने का एक महान कार्य उनके हाथों से कराया। 2017 में भगवत रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ परम पूज्य जीयर स्वामी जी के अति परिश्रम और निष्ठा के साथ मनाने का जो देश भर में प्रयास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी पूरे देश को भगवत रामानुजाचार्य के संदेश के अनुरूप जीवन जीने का एक आग्रह भी किया था और उन्होंने एक प्रकार से कई युवाओं को भगवत रामानुजाचार्य में से प्रेरणा लेने का बात भी की थी। और उसी वक्त जो संकल्प हुआ था, तो यदुगिरी यतिराज मठ के 41वें पीठाधीश यतिराज जीयर स्वामी जी द्वारा एक बहुत विराट स्मारक भाग्यनगर हैदराबाद में भगवत रामानुजाचार्य का बनाया है, जो न केवल रामानुजाचार्य के जीवन कवन को, उनके संदेश को, उनके वैष्णव परंपरा की सभी धार्मिक बातों को युगों युगों तक आगे ले जाएगा, परंतु दक्षिण भारत में सनातन धर्म का एक ऐसा स्थान बना है जिसने पूरे दक्षिण भारत की धार्मिक चेतना को संबल देने का, एक नई जिंदगी देने का काम किया है। मुझे भी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। एक प्रकार से रामानुजाचार्य का जीवन और कर्मस्थल ज्यादातर दक्षिण भारत में था, परंतु उनकी शिक्षा और उनके प्रेम का प्रसार आज पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है। मैं बाद में बताऊंगा, देश भर में अनेक मत, अनेक संप्रदाय रामानुजाचार्य के मूल संदेश में से और उनके शिष्य रामानंद के संदेश में से आगे बढ़े हैं। और आज इसी का परिणाम है कि ठेठ उत्तर में भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के अंदर इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीयर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। ये 4 फुट ऊंची शुद्ध सफेद आरस पहाड़ की मकराना संगमरमर की ये मूर्ति, जो बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रामानुजाचार्य की भक्ति मुद्रा में बनाई गई है, लगभग 600 किलो का इसका वजन है और ग्रेनाइट से बने 3.5 फुट ऊंचे पादपीठ पर उसको रखा गया है। यदुगिरी यतिराज मठ के सूर्यार मंदिर में उसके उत्थान और जीर्णोद्धार का काम स्वामी जी ने करा है। इसमें एक चतुर्भुज छत्र का निर्माण, चतुर्भुजीय फर्श, फाइबर ग्लास सीट के साथ मंदिर की 4 दीवारी, संपूर्ण मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान और दोबारा उसका रंग रोगान कर यात्रियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्थान बने। इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार। मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आपके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थान बनने वाला है। यदुगिरी का यतिराज मठ कर्नाटक के मांड्या जिले में मेलकोट का एकमात्र मूल मठ है जो रामानुजाचार्य के समय से आज मौजूद है। मित्रों, आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। गुजरात में भूकंप आया तब जीयर स्वामी जी उन संतों में से सबसे पहले थे जो वहां पहुंचकर गांव के पुनर्निर्माण का काम करे थे। मैं भी उस वक्त उनको मिला था और उनके नेतृत्व में जो गांव का पुनर्निर्माण हुआ है
उसमें अब मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं, गुजरात सरकार भी अगले साल रामानुजाचार्य का एक बहुत अच्छा प्रतिमा वहां पर लगाने जा रही है, जिससे चिरकाल तक कच्छ के लोगों को यदुगिरी मठ ने जो काम किया है उसका एक चिर स्मृति बना रहेगा। रामानुजाचार्य ने मठ की स्थापना उन आदेशों के साथ की जो उन्हें अपने गुरुओं से, यमुनाचार्य जी से प्राप्त हुआ था। आज यतिराज मठ के 41वें मठाधीश ने रामानुजाचार्य के जीवन के संदेश को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का काम किया है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। रामानुजाचार्य के जीवन में अल्प समय में बताना बहुत दिक्कत है, मगर मैं भी वैष्णव हूं, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ, पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ हूं, और पुष्टि मार्ग का उद्भव भी रामानुजाचार्य के संदेश से ही हुआ है। तमिलनाडु में विक्रम संवत 1074 में जब रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ, केशवाचार्य और माता कांति मणि के एक विलक्षण बालक ने किशोर अवस्था में ही सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। 23 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज सन्यासी ने उनको सन्यास की दीक्षा दी और अपने काल के अत्यंत विद्वान, साहसी, क्रांतिकारी तथा सामाजिक दृष्टि से अनेक बदलाव लाने वाले उदार धार्मिक पथ प्रदर्शक श्री रामानुजाचार्य बने। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी है जो युगों युगों तक हमें प्रेरणा दे सकती है। उन्होंने वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने का एक महान कार्य किया। रामानुजाचार्य जी का जीवन पूरे देश के अंदर विचरण करते रहे। 120 साल का पूर्ण जीवन उन्होंने धर्म, भक्ति और राष्ट्र को समर्पित किया। कश्मीर के साथ भी उनका गहरा रिश्ता रहा। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री भाष्य, जो वेदांत और ब्रह्म सूत्र पर की एकदम सरल मीमांसा है, इस कृति की रचना के लिए उन्होंने बोधियान वृत्ति का उल्लेख करना चाहा, जो ब्रह्म सूत्रों की सबसे आधिकारिक व्याख्या करने के लिए प्रतिष्ठित था। यह कृति उस समय केवल कश्मीर के शाही पुस्तकालय में ही उपलब्ध थी। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने कुछ अन्य शिष्यों के साथ दक्षिण से कश्मीर की दुर्गम यात्रा की, राजा से भेंट की। राजा ने भी अपनी लाइब्रेरी को भगवत रामानुजाचार्य के लिए खोला और विश्व को ये महान श्री भाष्य की भेंट मिली। मुझे बताया कि देवी सरस्वती ने श्री भाष्यकार की उपाधि से स्वयं रामानुजाचार्य को अलंकृत करने का काम किया था और उनको शारदा पीठ में सरस्वती देवी के साक्षात्कार होने की भी बात कहते हैं। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के माध्यम से रामानुजाचार्य ने समावेशी समाज, दर्शन और धर्म तीनों को पुनः व्याख्या किया। मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र को ही अपनाते हुए अपने जीवन को उन्होंने लोगों के सामने रखा। आज वही रामानुजाचार्य का एक विराट प्रतिमा बहुत अच्छे पवित्र स्थान पर विराजमान हुआ है, इसका मुझे आनंद है। मित्रों, रामानुजाचार्य के संदेश से देश भर के कई अनेक संप्रदाय उद्भव हुए। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, राजस्थान और गुजरात में वल्लभ संप्रदाय, भारत और बंगाल में चैतन्य संप्रदाय, असम में शंकरदेव का संप्रदाय, कबीर महाराज का संप्रदाय, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सब का उद्भव रामानुजाचार्य के वचनों से प्रभावित होकर हुआ। हमारे यहाँ बहुत भक्त प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये रचना भी रामानुजाचार्य के संदेश से ही की है। और कबीर जैसे व्यक्ति ने रामानुजाचार्य और इस वैष्णव परंपरा के गुणगान गाते हुए कहा, श्री नारायण मूल हमारे रामानुज की साथ, रंगकार में रमता जोगी गुरु रामानंद ने कहा। कबीर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो रामानुजाचार्य की ही देन है। मैं आज
यदुगिरी के यतिराज को सूर्य मंदिर के पुनरुद्धार और उत्थापन के लिए कार्य को देखकर मन को बड़ी शांति हो रही है और वहां ये शांति प्रतिमा का उद्भव प्रस्थान उनका प्रतिष्ठित होना ये पूरे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। आज हमारे एलजी जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और प्रगति के रास्ते पर निकल पड़ा है। वहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक वर्चस्व प्रस्थापित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में मनोज सिन्हा जी ने किया है और कश्मीर के जन जन तक कि बिना किसी भेदभाव से विकास के कार्य को पहुंचाने का काम भी उसने किया है। एक लंबे समय के बाद देश को अपेक्षा थी कि धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए। वो अपेक्षा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के लिए एक नए युग का स्थापन हुआ है। उसी वक्त ये शांति प्रतिमा की प्रस्तावना मुझे लगता है सभी धर्म के मानने वाले कश्मीरियों के लिए रामानुजाचार्य का आशीर्वाद लेकर आएगी, उनका संदेश लेकर आएगी और कश्मीर को उत्थान के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर और दृढ़ शांति के रास्ते पर आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से मैं परम पूज्य जीयर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। I now we have been joined by our other two chief guests. I have much pleasure in welcoming Dr. Ashwath Narayana, Minister of Higher Education, IT and BT, Government of Karnataka, and Shri Tejasvi Surya ji, Member of Parliament from Bangalore South, and we are extending the traditional Purna Kumbh Swagat to both of them. I now request His Holiness Shri Shri Yatiraj Jiyar Swami for his Ashirvachanam. श्रीमते रामानुजाय नमः। पुण्यां भोज विकासाय पापध्वां तक्षयाय च श्रीमान् आविर्भूतभूमौ रामानुज दिवाकरः तृणीकृत विरिञ्चादि निरङ्कुश विभूतयः रामानुज पदाम्भोज समाश्रयणशालिनः तस्मै रामानुजार्याय नमः ब्रह्मयोगिने यश श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्जरमशीषमत्। हमको बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि हम सब दो अर्थपूर्ण उपन्यास, भाषण नहीं, वो उपन्यास को हम सब सुने हैं। ये एक उपन्यास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की उपन्यास स्वामी रामानुजाचार्य का पूर्ण जीवन का चित्रण वो दिया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको और एक शुभ समाचार दिया है, गुजरात में अगले साल में रामानुजाचार्य का भस्म। इसीलिए हम सब गृह मंत्री अमित शाह जी को हार्दिक अभिनंदन दे रहा हूँ। हमारा सनातन धर्म का उत्थान पुनरुत्थान वो 8 ईयर से हो रहा है। हमारे भारत में अनेक साधु संत ऋषि मुनि आचार्य का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, अनेक ग्रंथ का अवतार हुआ है। ये सब मिलकर हमारा भारत जगत वंद्या है, जगत गुरु के स्थान में है। संत महांत यहाँ शांति सौहार्द स्थापने के लिए अहर्निशि अपना जीवन को समर्पण किया।
इसका द्योतक हमारा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य वेद वाक्य तरह वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। ये अखंड भारत दर्शन हमको हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के सतत परिश्रम से हमको ये वाक्य सत्य हुआ। कश्मीर में वो शांति सौहार्द वातावरण निर्माण होने के लिए स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस अमृतशिला विग्रह का स्थापना करने के लिए हमको रामानुजाचार्य ही प्रेरणा दिया। स्वामी रामानुजाचार्य सहस्र वर्ष पहले यहाँ आकर यहाँ स्वामी रामानुज को शुभ नामकरण हुआ, भाष्यकार नामकरण हुआ, उसका ग्रंथ श्री भाष्य हुआ, इसीलिए इसे पवित्र क्षेत्र हुआ। शंकराचार्य भी यहाँ आकर वो दर्शन का प्रचार किया। अनेक संत ऋषि मुनि गण यहाँ आकर श्रीनगर को पावन किया है। अब सुकाल आया है, हमको बहुत आनंद हो रहा है। श्रीनगर में अब आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको अनावरण किया है। केवल मूर्ति का अनावरण नहीं, यहाँ शांति सौहार्द का वातावरण अनावरण हो रहा है। हमारा भारत जगत वंद्य है। अनेक देश विदेश से इस कार्यक्रम के लिए अनेक भक्तगण यहाँ आए हैं। वो सब बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि गृह मंत्री स्वतः आदरणीय अमित शाह जी ने वो कहा स्वामी रामानुजन ने शांति सौहार्द का प्रतीक है। इसीलिए हमको आनंद हुआ है। हमारा श्री वैष्णव संप्रदाय में 108 दिव्य क्षेत्र है। आज से श्रीनगर 109 क्षेत्र होता है क्योंकि पहले बार संत रामानुजाचार्य ने यहाँ आकर सरस्वती वाग्देवी सरस्वती को श्री भाष्य समर्पण किया। तब वाग्देवी सरस्वती ने स्वतः वो श्री भाष्य को लेकर शिरस में धार कर स्वामी रामानुज को भाष्यकार नामकरण किया। वो ग्रंथ को श्री भाष्य नामकरण किया। वो उनके बाद शांति दूत के रूप से स्वामी रामानुजा यहाँ आकर इडी कश्मीर में वो शांति सौहार्द का वातावरण निर्माण होने के लिए वो आया है। इसीलिए हमको परम विश्वास है क्योंकि वो नवयुग प्रारंभ हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूर्ण समय को देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए अनेक कार्य कर रहा है। इसीलिए वो युग का प्रारंभ हुआ है, शांति युग का प्रारंभ हुआ है। इसीलिए हमको बहुत आनंद विश्वास हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र जी के नेतृत्व में इस श्रीनगर में इसी अनेक कल्याण कार्य यहाँ होने की सूचना हमको मिला है। आज हमको बहुत आनंद हुआ है क्योंकि यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 days बाद आई वेंट टू गवर्नर साहब वो इनवाइट करने के लिए गया था। वो पूर्ण मन से विश्वास से वो काशी यात्रा पूरे से यहाँ आए हैं। सो इसीलिए यहाँ वो 4 दिशा का संगम आज हुआ है। गुजरात प्रतिनिधि अमित शाह जी ने यहाँ उपस्थित वर्चुअल उपस्थिति है। यहाँ श्रीनगर का गवर्नर यहाँ है। कर्नाटका हमारा आदरणीय अश्वत्थ नारायण जी एवं तेजस्वी सूर्य है। इसीलिए श्रीनगर में आज 4 दिशा का पूर्ण संगम होकर श्रीनगर आज से अनवर्त श्रीनगर हुआ है। इसीलिए आप सबको बधाई देकर वंस अगेन हमारा मनोज सिन्हा को आदरणीय गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको हमको अभिनंदन दे रहा हूँ। 2 ಮಾತನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ವ ದಿನ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರಾಮಾನುಜರ ಆ ಶಾಂತಿದೂತ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಅವರು ಪುಣ್ಯಾಂಭೋಜ ವಿಕಾಸಾಯ ಪಾಪಧ್ವಾಂತಕ್ಷಯಾಯ ಚ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆವಿರಭೂದ್ಭೂಮೌ ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರವು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿದೂತ ರಾಮಾನುಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. I now request His Holiness Shri Shri Yatiraj Jiyar Swami to do the virtual honors to Amit Shah ji. I request everyone to be to stand up, rise for the national anthem. I request the national anthem to be played. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
I request everyone to be seated. I request everyone to be seated. ಓಂ